मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे और खुदावंद का फजल आप सब पर और हम सब पर हमेशा इसी तरह से बना रहे। हम शुक्रगुजारी करते हैं होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से कि हम आपसे मुखातिब हैं। खुदावंद ने हमें ये मुहैया किया है ताकि हम उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें, ताकि हम सब मिलकर उसकी हजूरी में ठहर सकें, हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। तो हम इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो हम दुआ करेंगे। तो मैं सिस्टर मुसर से कहूंगी कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें, फिर हम वर्शिप करेंगे। Thank you. खुदावन में आप सबकी सलामती हो. May His grace, peace, love, mercy, and Holy Spirit be with us all. Thank you, Heavenly Father, for this wonderful day, wonderful moment, and wonderful privilege that in the mighty name of Lord Jesus Christ that you have given us again so we can gather here, so we can worship, glorify you, Lord. Father, we are going to enter into your courts with a thanksgiving and into your gates with the praise, O Lord. Come and take a charge. The Spirit of the God come among us and be present here, Lord, in the mighty name of Lord Jesus Christ. Father, thank you for once again this privilege. Thank you for this holy sanctuary ministry, and you have set up onto the earth towards the end days, Lord. Father, we are you have called us in, and Father, we are eagerly and willingly standing here, and we're asking that come and pour your breathe onto us, and Holy Spirit be with us, Lord. And Father, that you bless all of us, Lord, and bless the many who will be hearing today the message every day, Father, that you have called us in, and we are standing as your servant, Lord, and that, Father, that you will continue to open our minds and brain and our hearts and our spiritual eyes, and you will give us the wisdom and discernment and the knowledge, and you will give us the meaning, the deep meaning of your scriptures, and you also in the Spirit will tell us the times too, Lord, because you move the times, and according to the times, Father, you only know the times, what will take place, we don't know, but we can see from the sign, because you always told us to look for the sign, Lord, and we can see the sign and we can determine where we are, but that does not mean anything, Father. It is mean like we have to be in your presence and we have to walk with you, Lord. Thank you, Father, for this once again, for this privilege. And thank you for all the blessing that you showered upon your children's, Lord, and your holy presence and your divine protections be upon us, Lord. In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. आमीन आमीन। हम खुदाम की शुक्रगुजारी के लिए हम गीत गाएंगे, खुदाम की हमदो सताइश करेंगे, ज़बूर हम 9 गाएंगे, और इसके बाद मैं ब्रदर रवि हैं हमारे साथ, मैं इसके बाद वो इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि इसके बाद वो वर्शिप करेंगे। तो हम जो है वो ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 9। दाएम यहोवा यारा, कायम है तख्त तेरा, दाएम यहोवा यारा, कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते ने आदे तख्त अपना है बिछाया, तू वास्ते ने आदे तख्त अपना है बिछाया, दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सचाया, दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सचाया, इंसाफ सचाया, सच्चाई नाल होंदे, सच्चाई नाल होंदे,
ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। हालेलुया। खुदावन तू हमेशा से हमेशा तक तख्त पर है। तो अब्दुल्लाबाद तक खुदावन तख्त पर है और तेरा तख्त हमेशा आबाद रहे। और खुदावन तू कौमों का इंसाफ करता है। खुदावन तू कौमों के लिए खुदावन बादशाह मुकर्रर करता है। बेशक खुदावन हर एक चीज तेरे कंट्रोल में है। और लश्कों के खुदावन तू अपनी कौम को, अपनी कलीसिया को खुदावन तू हमेशा संभाले रखता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा इस मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए खुदा कि तूने दुनिया से खुदा अपनी कौम को, अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को खुदा तूने अलग कर लिया है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावन की हम तो 27 में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ ब्रदर रवि हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वर्शिप में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। जय मसीह की, जय मसीह की। ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਸਵਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਪਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਪਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਆਉਂਦੀ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਆਉਂਦੀ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੂਬ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਬਦਨ ਉਹਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਇਆ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੂਬ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਬਦਨ ਉਹਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਇਆ ਸੀ। ਓਯੋ ਕੀੜਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਓਯੋ ਕੀੜਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਆਉਂਦੀ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਦਾਨੀਏਲ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਮੂਰੇ ਖੜਨਾ, ਛੱਡ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ। ਦਾਨੀਏਲ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਮੂਰੇ ਖੜਨਾ, ਛੱਡ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ। ਉਹ ਕੁੱਬਾ ਮਾਰ ਪਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਪੁੱਬਾ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਆਉਂਦੀ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਏ ਪਾਈਏ, ਤਾਈਓ ਕਥਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਏ ਪਾਈਏ, ਤਾਈਓ ਕਥਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ। ਉਹ ਕੁੱਬਾ ਮਾਰ ਭਾਵੇਂ ਓਯੋ ਕੀੜਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਆਉਂਦੀ ਮੌਤ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੂਬ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਬਦਨ ਉਹਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਇਆ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੂਬ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਬਦਨ ਉਹਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾਇਆ ਸੀ। ਓਯੋ ਕੀੜਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਓ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
हालेलुया, हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। अब हमारे साथ जो है वो यूनिका है। मैं उनसे कहूंगी कि वो वर्शिप करें हमारे साथ। यूनिका बेटी है हमारे साथ। मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। हम उसकी प्रशिश में आगे बढ़ते हुए उसके नाम को जलाल देंगे। दिलां विच झुकदा है खुदा जी दी बाहों फड़े, ये दिलां विच झुकदा है खुदा जी दी बाहों फड़े, जंगे ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े, जंगे ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े। मैं गावा हो सना, मैं गावा हो सना, यीशु दी हमदो सना, यीशु दी हमदो सना, दिलां विच झुकदा है खुदा जी दी बाहों फड़े। रहमत यसू पापी ते करदा, आदत ओदी डिगियां नू चुकदा, रहमत यसू पापी ते करदा, आदत ओदी डिगियां नू चुकदा, तूफानां नू रोकदा जिदी कश्ती ओ चले, तूफानां नू रोकदा जिदी कश्ती ओ चले, जंगे ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े, जंगे ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े। मैं गावा हो सना, मैं गावा हो सना, यीशु दी हमदो सना, यीशु दी हमदो सना, रूड़ी तो चुक के ओ महल बिठांदा, जिदा कोई नहीं ओनू गले नाल लांदा, रूड़ी तो चुक के ओ महल बिठांदा, जिदा कोई नहीं ओनू गले नाल लांदा, ओदे कदम कदे नहीं डोलदे जेड़ा नेचा नाल चले, ओदे कदम कदे नहीं डोलदे जेड़ा नेचा नाल चले, जंगे ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े, जंगे ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े। मैं गावा हो सना, मैं गावा हो सना, यीशु दी हमदो सना, यीशु दी हमदो सना, लहू यीशु दा सबनू बचांदा, वचन ओदा सानू जीना सिखांदा, लहू यीशु दा सबनू बचांदा, वचन ओदा सानू जीना सिखांदा, तूफानां नू रोकदा जेड़ा नेचा नाल चले, जंगे ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े, जंगे ओही जित जांदा जिदे नाल ओ खड़े। मैं गावा हो सना, मैं गावा हो सना, यीशु दी हमदो सना, यीशु दी हमदो सना। आमीन। आमीन, आमीन। बेशक वो जिसके साथ खड़ा है वो कभी कभी जो है वो हिल नहीं सकता, वो कभी भी जो है लड़खड़ा नहीं सकता। खुदावंद हमेशा हमें साबित कदम खड़ा रखता है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। अब हम कोर्स गाएंगे, तो कोर्स के साथ साथ हम अपने आप को कलाम के लिए तैयार करेंगे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सब अपनी आंखें बंद करेंगे और हम सब कोर्स गाएंगे।
पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, तो फिर उसके साथ साथ हम कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, खाली दामन है खाली का से हैं, खाली दामन है खाली का से हैं, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, कोई तृष्णा यहाँ से ना लौटे, झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं, झोलियाँ खूब भरना चाहते हैं, तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है, तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत मसीह की सीरत है, कर करम आज अपने लोगों पर, कर करम आज अपने लोगों पर, पाक यीशु से मिलना चाहते हैं, खाली दामन है खाली कार से हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यार से हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यार से हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि सब अपने अपने माइक ऑन करें और सब ये आंखें बंद करके गाएं कि पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। हम ये कोर्स सब गाएंगे, एक साथ गाएंगे। पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं, फिर कहेंगे हम पाक रूह हम यीशु के के प्यासे हैं, खाली दामन जो है, खाली दामन दामन है खाली का से हैं, खाली दामन दामन है खाली का से हैं। आमीन आमीन। आमीन, पाक रूह आमीन। हम यीशु के प्यासे हैं। पाक रूह हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू यहाँ पर मौजूद है। पाक रूह हम तेरी हजूरी को महसूस करते हैं। पाक रूह हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे लिए ये बड़े ही आजाज की बात है पाक रूह कि तू हमारे अंदर रहता है, कि तू हमारे साथ साथ चलता है। पाक रूह तू हमारी रहनुमाई करता है, तू हमें हिकमत देता है। पाक रूह हम नाचीज लोगों पर तूने हम पर अपना फजल किया है, और पाक रूह तूने अपनी कुदरत से हमें भरा है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पाक रूह हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। आज के तमाम पार्टिसिपेंट्स को जिन्होंने खुदावंद हमें ज्वाइन किया है, खुदावंद उन सबको खुदावंद तेरे पाक हाथों में देते हैं। और लश्कों के खुदा वो जहां जहां भी हैं खुदावंद, वहां पर खुदावंद तेरी गहरी जुम्बश वहां पर मौजूद हो, तेरा गहरा मस्सा खुदावंद उन्हें छू ले खुदावंद, और खुदावंद उन्हें अपनी कुदरत से भर खुदावंद, और उनकी खिदमत खुदावंद जो है वो फलदार खिदमत हो खुदावंद। वो जहां जहां भी खिदमत कर रहे हैं, जहां जहां भी खड़े हैं खुदावंद, उनके वसीले से खुदावंद बड़े बड़े काम हो, बड़े बड़े मोर्जात हो खुदावंद लश्कों के खुदावंद। हम सब जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं खुदावंद, हम जो इस टीम का हिस्सा है खुदावंद, तूने हमें जोड़ा है। हम खुदावंद
हम सब मिलकर खुदावंद अपनी अपनी सोच को, अपनी अपनी गरज को, अपने आप को खाली करके खुदावंद हम बगैर किसी मतलब के खुदावंद, हम बगैर किसी गर्ज के खुदावंद, हम सब जो है एक दूसरे के साथ चलें, हम मोहब्बत से एक दूसरे की रहनुमाई करें, हम प्यार से एक दूसरे को संभालें खुदावंद, हम एक दूसरे के साथ चलें, एक दूसरे को सिखाएं खुदावंद, एक दूसरे से सीखें हम खुदावंद लश्करों के खुदावंद पाकरू। तो हमें इसी तरह से अपने उस मोहब्बत में, उस युगानगत में पाकरू तो हमें जोड़े रखना, हमें इसी तरह से बांधे रखना, ताकि इस टीम के वसीला से, होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के वसीला से दुनिया में बड़े बड़े काम हो, बड़े बड़े मौजज़ात हो। पाकरू ये सब कुछ तो कर सकता है, हम कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ मोहरे हैं। पाकरू आज हम आज के कलाम को भी खुदा तेरे पाक हाथों में देते हैं। पाकरू जो आज तो हमसे कलाम करने वाला है, बड़े बड़े दिलों के ख्याल खुले इस कलाम के वसीला से। हम जो इस दुनिया में जो हालात चल रहे हैं, इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है खुदावंद, वो सब कुछ खुदावंद हम जान सकें, उसको परख सकें खुदावंद, और उसको तेरी नजरों से देख सकें खुदावंद, ताकि हम उस अबलीस के चुंगल से बच सकें, अपने आप को बचा सकें। पाकरू हम तेरी एक बार फिर शुक्रगुजारी करते हैं और हम तुझे वेलकम करते हैं। हम सारी इज्जत, सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं, क्योंकि वही कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। आमीन। अब हमारे साथ भाई फयाज हैं, मैं उनसे कहूंगी कि वो कलाम के लिए दुआ करें, और सिस्टर नुसरत आज कलाम की खिदमत करेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि भाई फयाज जो है उनके लिए दुआ करें। भाई फयाज, आप हमें सुन रहे हैं? भाई फयाज शायद नहीं। जी 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 सुन रहा हूँ मैं, बस हम माइक खोल ले। दुआ करते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स, मेरा दिल तेरी शुक्र से भरा है खुदा। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, तुझे अपने वादों का सच्चा खुदा है। और खुदा अब वक्त है कि हम तेरी मीठी आवाज को सुने, तेरे मुंह की बातों को सुने, तेरे कलाम की बातों को सुने। देख खुदा, मैं तेरी बंदी, तेरी खादमा नुसरत भट्टी के लिए खुदा तेरे पाक रूह को मांगता हूँ, उसे अपने पाक रूह से भर दे खुदावंद। वो ना बोले, तेरा पाक रूह उसमें से हो कि हमसे हम कलाम हो, हम तेरी आवाज को सुने। अपनी बंदी को अल्फाज की तरतीब दे, उसके जबान का जिम्मा ले खुदावंद। जब तक वो इस मसबत पर खड़े होकर तेरे कलाम की बात करे, पाक रूह एक भी लम्हा ना उससे जुदा हो, ना हम सुनने वाले से जुदा हो। पाक रूह से हमसे हम कलाम हो, हम तुझसे बात करना चाहते हैं, तुझे सुनना चाहते हैं खुदा बाप। खुदावंद अपनी बंदी को बड़ी बरकत दे, बड़ी बरकत दे, और कलाम को कसरत से खुदावंद उसके दिल में डाल दे, और उसकी जिंदगी में खुदावंद तेरा कलाम जब भरा रहे, ममूरी हो, तेरी हजूरी हो खुदावंद पाक खुदा। और इसी तरह अपने कलाम की खिदमत के लिए अपनी बंदी को कसरत से इस्तेमाल कर, और अपने पाक रूह का डबल पोर्शन दे यीशु नाम से। आखा आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का सबब बने, बायस बरकत हो। बहुत सारे लोग जब इस कलाम को सुने बरकत पाए, उनकी जिंदगियों में तब्दीली आए, और तेरे पाक रूह को खुदा अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं। खुदा देख, मैं तेरी बंदी पर, तेरी खादमा पर तेरे कभी हाथ को मांग लेता हूँ, पाक रूह से भर दे यीशु, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। अब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमसे कलाम करने को है। तो हम सब जोरदार तालियां बजाएंगे, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे, और खुदावंद की बंदी के लिए भी तालियां बजाएंगे, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा के खादिम जो है हर दो चंद इज्जत के लायक समझे जाएं। तो जब हमारे दिलों में खुदा के खादमों के लिए इज्जत है, तो इसका मतलब है कि खुदा के लिए और खुदा के कलाम के लिए हमारे दिलों में इज्जत है। आमीन। मैं सबके माइक ऑफ कर दूंगी, अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज माइक ऑफ कर दें। सिस्टर नुसरत, आपका माइक ऑफ है। अब आ रही आवाज?
आ रही है आवाज? जी आवाज आ रही है, अब बोले आप। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का आसमानी बाप का फिर शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे ये मौका बख्शा कि मैं आपके साथ कलाम के बारे में बयान कर सकूं। खुदावंद ने जो मुझे दिया वो मैं आप सबको बता सकूं, जो मुझे रूह कुदस के वसीला से मुझ पे रिवील हुआ, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहती हूँ। मैं मतलब रेवलेशन चैप्टर 12, जो वो औरत चांद पे खड़ी है और वो ड्रैगन्स है, रेड ड्रैगन्स है और उसके 7 सर हैं और 12 सींग है, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। तो इससे पहले कि मैं बयान करूं, मैं कल एक सॉन्ग हम कर रही थी, ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है कि उसके ये है कि who am that I the highest king would welcome me, कि मैं कौन हूं कि जिसको highest king welcome करेगा। मैं लॉस्ट था लेकिन उसने मुझे फिर वापस ले लिया, तो उसका प्यार है। तो वो इस तरह के who the sun sets free, oh free indeed, I am a child of God, yes I am. Who the sun sets free, oh free indeed, I am a child of God, yes I am. आगे कहता है, in my father's homes there are place for me, I'm a child of God, yes I am. In my father's house there's a place for me, I am a child of God, yes I am. Who the sun sets free, oh free indeed, I am a child of God, yes I am. I am a chosen, not forsaken, I am who you say I am. You are for me, not against me, I am who you say I am. I am a chosen, not forsaken, I am who you say I am. I am a chosen, not forsaken, I am who you say I am. आगे कहता है, you are for me, not against me, I am who you say I am. Who the sun sets free, oh free indeed, I am a child of God, yes I am. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Thank you for this wonderful moment once again, Father, that you've given it to your servant, that your servant is here again, Lord. Thank you, Father. Thank you for your holy presence here, Lord. Thank you for the Holy Spirit. And Father, continue to pour your Spirit onto all of us, Lord. Pour your Spirit onto your servant, Lord. And your servant be able to speak your word, the word you want me to speak today. In the mighty name of Lord Jesus Christ, amen. तो पिछली दफा हम बात कर रहे थे कि जैसे मैंने अभी बयान बताया कि हम चैप्टर 12 रेवलेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो रेवलेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, ये फ्यूचर्स के बारे में बयान करती है और इसमें ये सारे जो सब लोग कहते हैं कि भी मैंने अपनी मदर इन लॉ से कहा कि ये बहुत अच्छे साइन है, तो वो कहती है नहीं बाबा मुझे तो बड़ा डर लगता है, मैं नहीं पढ़ती। मैंने कहा नहीं ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये जो सारे हैं जो ना ये हमें बताते हैं कि खुदावंद के बच्चों को किस किस मुसीबतों से होकर गुजरना है, खुदावंद की कलीसिया को किस किस मुसीबत से होकर गुजरना है। तो ये जो वुमन थी, पिछली दफा हमने बात की थी कि वो चांद पे खड़ी है और हमने वो मोडीम्स जो खुदावंद के अपॉइंटेड टाइम है, अपॉइंटेड ईदें हैं, जो कि वो मतलब उस औरत को प्रेग्नेंट होके उसमें से गुजरना है। तो अब वो जो ड्रैगन है वो कहाँ पे खड़ा है, वो ड्रैगन कौन है और उसके साथ पे सात क्या 7 हेड्स क्या है, 7 क्राउन्स क्या है और उसके सर पे जो 10 हॉर्न्स हैं वो क्या सिग्निफिकेंट, वो क्या सिग्निफाई करते हैं। तो जब मैं मतलब उससे पहले कि मैं शुरू करूं बाइबल मुकद्दस को पढूं और शुरू करूं,
میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بھی پچھلی دفعہ یہ میں بتانا بھول گئی تھی کہ یہ جو 7 عیدیں خداوند کی ہیں، خداوند نے اسرائیل اپنے میں مطلب اپنی عیدیں ہیں جو اسرائیل کے اندر سے پوری کرنی ہے، اسرائیل نیشن آف اسرائیل میں پوری کرنی ہے، اس کے مطلب اس عیدوں کو اس نے یوز کرنا ہے اپنے سالویشن پلان کے لیے. تو مطلب اب جو 2 عیدیں ہیں، آپ جان سکتے ہیں کہ یوم کفارہ کی کیا عید ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ یوم کفارہ جو ہے وہ کتنا مطلب ڈریڈفل ٹائم ہوگا، کتنا بلڈ شیڈ ہوگا، اور وہ کس طرح ان کا ڈے آف اٹونمنٹ جو ہے نا وہ خداوند کرے گا. ہم سب جانتے ہیں کہ آخری دنوں میں کیا ہونا ہے، جس کو ہم آرمگدون کی جنگ بھی کہتے ہیں، جس میں بہت بلڈ شیڈ ہونا ہے. پھر انہوں نے خداوند کو دیکھنا ہے. یہ فیوچر ٹائم ہے. پھر نرسنگوں کی عید پہ میں نے بتایا کہ اس میں نرسنگ ایک پھونکا جائے گا، جیسے یسوع مسیح اپنے لشکر کے ساتھ آسمان سے آئے گا اور وہ اپنی دلہن کے ساتھ ملے گا. وہ خداوند کا اپوائنٹڈ ٹائم جو کہ فیسٹ آف ٹرمپٹ ہے، جو کہ نرسنگے کی عید ہے. پھر ٹیبرنیکل میں یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہی ہونی ہے. تو یہ 3 عیدیں جو فالز میں اس ابھی چل رہی ہیں اس مہینے میں، اس میں ہونی ہے. تو آئیے ہم دوبارہ پڑھیں گے کہ ریولیشن چیپٹر 12 اس کی ورس 3 سے ہم پڑھیں گے. ہم ڈریگن کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے ہیں. Then another sign appeared in heaven, an enormous red dragon. Enormous means بہت ہی giant, بڑا. A red dragon with the 7 heads and the 10 horns and the 7 crowns on its head. Its tail swept the third of the stars out of the sky and flung them into the earth. The dragon stood in front of the woman who was about to give birth, so that it might devour her child the moment he was born. تو یہ میں نے جو کلام مقدس میں پڑھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دوسرا سائن جو اپیئر ہوا کہ ایک ریڈ ڈریگن، بگ جائنٹ لائک مطلب جن، ایک قسم کا جن فائری ڈریگن تھا، بہت ہی مطلب ڈریڈفل اسکیری ڈریگن تھا، جو کہ عورت کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اور کیونکہ عورت وہ پریگننٹ ہے، تو عورت کا ہم نے بیان کیا کہ وہ نیشن آف اسرائیل ہے، جو کہ سالویشن، خداوند کے سالویشن کے پلان کے ساتھ پریگننٹ ہے، جنہوں نے سیویئر کو جنم دینا ہے. تو وہ ڈریگن جو ہے، جو کہ شیطان ہے، وہ اس کے آگے کھڑا ہے. اب اس پریگننٹ عورت کو ان 7 ہیڈز اور 10 اور پھر اس کے بعد کی عورت کو 10 ہورنز میں سے ہو کر گزرنا ہے. تو یہ ٹائم بتا رہا ہے کہ ایک ٹائم ٹیبل ہے، خداوند کا ٹائم ہے کہ خداوند نے کس طرح اس عورت کو، اس قوم کو، اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو، اور اس پریگننٹ عورت کو، جس کو خداوند نے اپنے 10 مدین اپوائنٹڈ ٹائم کے ذریعے اس کو پریگننٹ کیا ہے تاکہ وہ بچہ ڈیلیور کر سکے. لیکن اس عورت کو مطلب ان 10 ٹائم میں سے ہو کر 7 کنگڈم میں سے ہو کر گزرنا ہے، جو کہ شیطان کی کنگڈمز ہیں. تو اب میں آپ کو وہ کنگڈمز بتاؤں گی کہ وہ کنگڈمز کہاں پہ ہیں. تو جب ہم ڈینیل 7 پڑھتے ہیں تو یہ ریولیشن جو ہے ایک مطلب آخری ٹائم کی بک ہے. یہ بتاتی ہے کہ مطلب کیا ہونا ہے. تو خداوند نے جو یوحنا کو سائن دیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہو چکا ہے اور کیا ہونے والا ہے. تو اب ہم ڈینیل 7 کھولیں گے تو اس میں پڑھیں گے چیپٹر 7 ڈینیل ڈریمز آف 4 بیسٹ. اب 4 بیسٹ جو ہے، میں نے پہلے کہا کہ بیسٹ جو ہے وہ شیطان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، شیطان کی جو کنگڈم ہے. جیسے کہ زمین شیطان کے وسیلہ سے مطلب کرس ٹھہری اور شیطان نے اپنی بادشاہی زمین پہ قائم کر لی تاکہ وہ خداوند سے بڑی بادشاہی کو قائم کر سکے. اب جو اس نے کہا ہے کہ اس نے اپنی ٹیل کو ہلا کے آسمان سے ستارے گرا دیے. تو اب پیچھے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو سارے ستارے جو شیطان کے ساتھ گرے تھے وہ سارے اینجل تھے جو کہ شیطان کے پیروکار تھے. خداوند نے ان کو گرا دیا تھا. اس نے اپنے ساتھ اور ستاروں کو اپنی دم کے ساتھ نیچے گرا لیا. تو جب اس نے گرایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دم کے ساتھ کیا ہوا. اب پیچھے جا کے نووا ٹائم میں دیکھ لے کہ وہاں پہ وہ جو ستارے، گرے ہوئے ستارے تھے، وہ کیا کر رہے تھے.
क्यों खुदावंद को फ्लड भेजना पड़ा, क्यों खुदावंद ने उनको वाइप ऑफ कर दिया। फिर आप सादम और गमोरा को देख सकते हैं कि क्यों खुदावंद ने ऊपर से आग भेजकर उस शहर को जला दिया। ये वही सितारे हैं जिनको शैतान ने नीचे गिराया था, जो उसके पैरोकार थे, जो काम करते थे। तो अभी तक उसके जो सितारे हैं जमीन पर हैं, जिनको खुदावन ने खत्म करना है। लेकिन खुदावन अपने टाइम के हिसाब से बता रहा है कि मतलब इस औरत को दर्द ज़ह में कितनी गुलामी में से होकर गुजरना है, शैतान की उस टाइम में से किस तरह उसको दर्द ज़ह में गुजरना है, और फिर उसने साल्वेशन को देना है। अब ये देख सकते हैं कि वो सूरज को पहन के, मतलब कि खुदावन को पहन के खुदावन की हुजूरी में, खुदावन की होलीनेस में वो जमीन पर कैसे चल रही है। तो ये वो औरत है। अब हम पढ़ते हैं डैनियल की 7:20 में, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द Belshazzar, king of the Babylon, Daniel had a dream, and the visions passed through his mind as he was laying in the bed. तो डैनियल ने जब वो के बेबीलोन की स्लेवरी में था, तो उसके फादर की डेथ होगी, तो वो जो दूसरा किंग था, जो उसका फर्स्ट ईयर उसकी बादशाहत का, बेलशाज़र का, कि उसमें वो अपनी चारपाई पे लेटा था, तो उसने ड्रीम देखा कि he wrote down the substance of his dream. तो उसने जो ड्रीम देखा उसने वो उसको लिखा। तो उसको लिखा कि Daniel said, in my vision at night I looked, and there before me were the four winds of the heaven stringing up the great sea. तो वो कह रहा है कि वो ग्रेट सी के सामने खड़ा, ग्रेट सी पे खड़ा था। फोर ग्रेट बीस्ट, each different from the others, came up or out of the sea. तो वो कह रहा है कि सी जो है, सी जो मैंने आपको बताया कि पानी है, सी जो है वो मतलब लोगों को बयान करता है कि वो पानी के लोग हैं, जो मतलब पानी को पूजा करते हैं, पानी के लोग हैं जो मतलब के पानी को कुछ अपना खुदा समझते हैं। कि उनमें से 4 बीस्ट निकले हैं। जो 4 बीस्ट उसने देखे हैं, उसमें से पहला उसने चैप्टर 7 उसके वर्स 4 में उसने लिखा है कि the first was like a lion, and it had the wings of an eagle. I watched until its wings were torn off, and it was lifted from the ground so that he stood on 2 feet like a human being, and the mind of the human was given it to him. तो वो कह रहा है कि मैंने एक लायन देखा जिसके 2 पर थे ईगल की तरह। तो मैं उसको देख रहा था जब तक उसके पर उससे काटे ना गए, और मैंने उसको मतलब जमीन पर खड़े देखा, जो कि जमीन पर ऐसे खड़ा था जैसे ह्यूमन बीइंग खड़ा होता है, और उसका माइंड भी ह्यूमन बीइंग था। ये वो किंगडम है डैनियल, ये जो लायन की किंगडम है वो ये है कि जब आपको मैं बता दूं कि इस नेशन ऑफ इजराइल्स ने मतलब 7 किंगडम्स, सेटन्स के माउंटेन पे 7 किंग, उसके जो चर्चेस हैं उसकी 7 किंगडम्स, क्राउन जो वो किंगडम्स को बयान करते हैं, उसमें से होकर गुजरना है। पहले वो किंगडम से हो चुके थे, वहां वो 400 इयर्स रहे, जो कि मिस्र की थी। मिस्र की गुलामी से आजाद होके फिर आप देख सकते हैं कि जब इस्राएल प्रॉमिस लैंड में वापस आई, तो उन्होंने वो खुदावन की ईदें रखते रहे जब तक वो रखते, लेकिन वो फिर मुतनफर हो गए। तो खुदावन का उनसे ये था कि जब तक तुम मूसा ने बार बार उनको ये कहा था कि तुम खुदावन की एक एक जो उसके कवनेंट है, उसकी डिक्रीज एंड कवनेंट है, उसके जो वो उसने आपको लॉज दिए हैं, उनको मानते रहना। अगर तुम नहीं मानोगे तो खुदावन, क्योंकि मूसा ने खुदावन के साथ बैठ के बातें की है, मूसा को पता था कि खुदावन की मतलब क्या सोच है, खुदावन क्या है, और खुदावन मतलब उसने खुदावन की आंखों में प्यार भी देखा और उसने खुदावन का गजब भी देखा था। इसलिए वो उनको बार बार कहता था कि तुमने इन ईदों को रखना है, तुमने इन खुदावन के कवनेंट को मानना है, अगर तुम नहीं मानोगे तो मरोगे। क्योंकि उसी वक्त खुदावन का गजब जो है ना, वो उन दिनों में तो इतना सख्त टाइम था कि खुदावन का गजब उसी वक्त जो है ना वो लोगों पे आता था और लोग मर जाते थे। तो आप ये देख सकते हैं कि आगे जाके फिर जो किंगडम है
वो दो किंगडम उनमें दरार पड़ गई। इसराइल के 12 कबीलों के किंगडम जो किंगडम है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई कि नॉर्दर्न किंगडम एंड साउदर्न किंगडम। अब नॉर्दर्न किंगडम जो थी वो जो 12 ट्राइब थे 11 ट्राइब जो थे वो भी साइड पे हो गए, उन्होंने अपनी किंगडम बना ली इसराइल की, तो वो नॉर्दर्न किंगडम हो गई इसराइल की। फिर मतलब साउदर्न किंगडम जो कि जूश किंगडम थी, जो कि मतलब जुडिया जो था, जुडिया एंड इसराइल 12 ट्राइब they divided into 2 kingdom। उधर से जाके उन्होंने पता है क्या किया कि वो खुदावंद के कवनेंट को रखना भूल गए। खुदावंद के जो 770 सबत है उनको वो रखना भूल गए, इसलिए खुदावंद बार बार उनको इसलिए गुलामी में भेजता था। तो खुदावंद का, क्योंकि वो खुदावंद से मुतनफ़र होते थे, अब इस औरत को, क्योंकि वो खुदावन ने उनको चुना था, इस औरत को खुदावन का ये बड़ा मंसूबा पूरा करना था। लेकिन खुदावन जो था कि वो ये चाहता था कि हर वक्त मेरी हजूरी में मेरे कवनन माने, मेरे फीस्ट माने, लेकिन वो मानने से इनकार कर देते थे, वो फिर मतनफ़र हो जाते। वो हमेशा मतलब खुदावन की आवाज को सुनने की बजाय वो देखी हुई चीजों को फॉलो करते थे। वो ऐसे थे कि जब जो भी वो अर्थ का सिस्टम देखते थे वो उसको फॉलो कर लेते थे, और खुदावन को फिर इस चीज से गुस्सा आता। फिर खुदावन ने उनको दोबारा गुलामी में भेजा। खुदावन ने फिर वो शैतान का जो दूसरा हेड था उस पे उसको भेज दिया, जो कि मतलब उससे सबसे पहले तो 734 BC में, मतलब 734 BC पहली बिफोर क्राइस्ट, मतलब उसको मतलब असीरियन ने जो 12 जो दूसरी नॉर्दर्न किंगडम थी उसको असीरिया ने अपने कब्जे में ले लिया, तो वो फिर असीरिया की गुलामी में चले गए। फिर उसके बाद ये लायन की बात कर रही हूँ। फिर उसके बाद मतलब जो दूसरी किंगडम थी, साउदर्न किंगडम, जो कि जूडा की किंगडम थी, वो मतलब 570 BC में वो जो थी वो बेबीलोन के कब्जा में चली गई। अब ये जो लायन है वो बेबीलोन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो शैतान के सर पे 7 हेड है, ये मिस्र की गुलामी है, ये मिस्र का किंगडम है, और दूसरी जो थी वो बेबीलोन और असीरिया की। अब 70 साल तक, क्योंकि 70 डे खुदावन की उन्होंने नहीं मनाई थी। अब खुदावन ने हमेशा जब भी उनको गुलामी में भेजना था 70 साल के लिए भेजा। खुदावन ने उनको कहा कि तुम 70 साल गुलामी की हालत में रहोगे, तो वो 70 इयर्स गुलामी की हालत में रहे। उसके बाद जो तीसरा उसने ड्रीम देखा, फिर उसने ड्रीम देखा कि and there before me was on the verse 5, he said, and there before me was a second beast which looked like a bear. It was raised up on one of its side, and it had 3 ribs in its mouth. Between its teeth it was told, get up and eat your fill of the flesh. तो ये कह रहा है कि ये जो दूसरा बीस्ट उसने देखा वो बेयर था, जिसके आप देख सकते हैं कि उसने रीच देखा, उसके अंदर उसके माउथ पे 3 रिब्स थी। वो जो 3 रिब्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं मतलब उसकी जो 3 उसके वेव है, उसकी जो किंगडम को चलाने के 3 वेव्स हैं, वो छोटी किंगडम जो छोटे हिस्से में डिवाइडेड होती है, वो उसको बता रहा है। अब ये जो बियर है वो जो उसको कह रहा है कि ये जो रीच है, क्योंकि दूसरा जो डैनियल ने देखा कि वो किंगडम जो थी, जो ड्रैगन के सर पे हेड है, क्राउन वाला हेड है, वो बेबीलोन के बाद आपने देखा कि बेबीलोन को किसने कांकर किया। बेबीलोन को फिर किंग फायरस ने किया, जो कि मीडो पर्शिया की किंगडम थी। तो which the bear with the 3 ribs in his mouth under King Cyrus conquered Babylon. तो बेबीलोन में किंग साइरस ने मतलब बेबीलोन को कांकर किया। आपको पता है कि आप समझ सकते हैं कि जब नबूकदनेस्सर ने एक ड्रीम देखा कि एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी स्टैचू है, तो उसके मतलब सर पे सख्त हेड है, सोने का है, जो भी है मैं उसको बयान नहीं कर, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं उसको पढ़ूंगी तो मैं आपको अच्छी तरह बयान कर सकूंगी उस पे स्टडी करके। लेकिन वो रिप्रेजेंट, उसने जो ड्रीम देखा था उसने वो देखा था कि वो जो उसके बाद जिसको उसने कांकर करना है वो सारी किंगडम शैतान की जो आनी है। वो शैतान का जो तीसरा हेड था, तीसरी जो उसकी बिगेस्ट
किंगडम थी वो मीडो पर्शिया की थी, जो कि रीच जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जो मीडो पर्शिया में साइरस था, अब उसकी गुलामी में उन्होंने 70 उसकी और बेबीलोन की और सीरिया की गुलामी में उन्होंने 70 साल रहना था। उसके बाद खुदावन ने उनको वापस भेजना था। फिर खुदावन जो है कि वो अपने बंदे को तैयार करता है उनको शर्म दिलाने के लिए, क्योंकि दोनों ही खुदावन के बंदे हैं। खुदावन दोनों को यूज करता है, बेशक वो अपनी कौम के खिलाफ और बेशक उनकी फेवर में। फिर खुदावन ने किंग साइरस के दिल में मतलब ये डाला कि वो जो उसका जो हाउस है उसको दोबारा बिल्ड करे। फिर उसने उनको यरूशलेम में वापस भेजा। एक किंग साइरस था कि जिसने दोबारा टेम्पल तमीर किया। फिर वो वापस अपनी होमलैंड में गए, तो वहां से वो अभी होमलैंड में गए थे, तो वहां से फिर क्या हुआ कि उससे बाद चौथी किंगडम शुरू हो गई। जब उसने देखा कि एक और उसने साइन देखा कि आफ्टर दैट ऑन दिस वर्स 6 में कहता है कि आफ्टर दैट आई लुक्ड and there before me was another beast, one that looked like a leopard, and on its back it had 4 wings like those of a bird. This beast had 4 heads, and it was given authority to rule. तो रूल जो करता है स्कैप्टर के साथ, वो किंगडम को रिप्रेजेंट करता है। अब चौथा जो सर है उसके ऊपर सर, जिसके ऊपर सर क्राउन है, वो चौथी किंगडम जो है डैनियल ने जो देखी, वो देखी कि उसने एक लेपर्ड देखा, चीता देखा। अब देख सकते हैं कि चीता जो है फुर्तीला होता है, कितना फास्ट भागता है। अब देख सकते हैं कि विदिन अ डेज उस चीते ने कैसे इस्राएल को और पूरी वर्ल्ड को कांकर किया। अब वो जो चीता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो अलेक्जेंडर द ग्रेट को रिप्रेजेंट करता है। आप देख सकते हैं कि हमारी हिस्ट्री में अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने दुनिया को कांकर करने के लिए वो तेजी से पूरी दुनिया में घूमा, चीते की तरह घूमा, और उसने कैसे उसको कांकर किया। अब खुदावन की वुमेन को, प्रेग्नेंट वुमेन को, मतलब जिसको खुदावन ने प्रेग्नेंट कर लिया है अपने मोडीन के जरिए, अपने पॉइंटेड फीस के दिए उनके साथ मुलाकात करके, अब उसको खुदावन ने मतलब चीता की गुलामी में भेज दिया। किंग उसको मतलब अलेक्जेंडर की उसमें भेज दिया। अब चीते के सर पे 4 हेड है, तो वो 4 हेड जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं कि अफसोस की बात ये है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था वो मतलब सिर्फ वो सिंगल था, ना तो उसकी शादी हुई थी, ना उसका कोई बच्चा था, वो यंग उम्र में ही मर गया। तो अब उसकी जो किंगडम है, जो उसके सर पे 4 हेड्स हैं, उसमें 4 हिस्सों में डिवाइड होगी। उसके जो आर्मी के 4 जनरल थे वो उसमें डिवाइड होगी, जिसमें 2 जो है ना उन्होंने मतलब इसराइल पे और पैलेस्टीन पे और पूरे एशिया माइनर पे कब्जा कर लिया। ये वो चौथी किंगडम, शैतान की चौथी किंगडम है, चौथा सर है। अब आगे जाके वो कहता है कि फिर मैंने एक और ड्रीम दिखा। 7वीं वर्स में वो कहता है कि and that my vision at night I looked, and before me was a 4th beast, terrifying and frightening and very powerful, had a large iron teeth. It crushed and devoured its victims and trampled under his feet whatever was left. It was different from all the former beasts, and it had 10 horns. अब जो डैनियल ने जो ये हॉर्न देखे, अब ये देख सकते हैं कि यूहन्ना को भी खुदावन ने जो विजन्स में देखा कि उसने भी ड्रैगन पे 7 सर और वही देखे जो कि किंग डैनियल ने देखे थे। अब किंग डैनियल जो है वो मतलब कह रहा है कि मैंने चौथा बीस्ट देखा। अब वो चौथी किंगडम क्या है कि वो जो स्केरी ड्रैगन है, वो के शैतान का एक मतलब ये शैतान के पैरोकार है। ये शैतान की वो चौथी किंगडम शुरू हो गई, 5वीं किंगडम शुरू हो गई, जिसमें मैं आपको बताऊं कि इसी किंगडम के दौरान खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी। ये वो रोमन की किंगडम है जिसके बारे में वो बात कर रहा है कि वो कह रहा है कि जो उसने देखा था, ये उसने पास्ट में देखा जो कि फ्यूचर में होना था। तो ये देखा कि उसने कि एक मतलब और बीस्ट, यानी कि एक और शैतान का किंगडम शुरू हो गई जो कि बेबीलोन द ग्रेट। अब मैं बेबीलोन द ग्रेट वो नहीं है कि जो मेसोपोटामिया
उस वक्त बेबीलोन, मेसोपोटामिया को बेबीलोन कहते थे, लेकिन आज बाइबल के अंदर जो बेबीलोन कहलाई जाती है वो सिटी है, वो शहर है, वो हुकूमत है जो खुदावंद के लोगों के खिलाफ है, जो खुदावंद के लोगों को मारती है, जो उनके मतलब उनकी ब्लड शेड करती है, वही बेबीलोन है। अब जो बेबीलोन द ग्रेट शुरू हुई वो रेवलेशन में जो बता रहे हैं कि वो kingdom of the Babylon, kingdom of the great Babylon, which is the Roma. So Roman kingdom जो थी वो मतलब शुरू हुई, जिसके दौरान वो शैतान उसके सामने खड़ा हो गया और वो उसकी कोशिश थी कि ये बच्चा पैदा होने से पहले ही उसको वो निगल जाए। तो ये जो रोमन किंगडम थी, आप देख सकते हैं कि रोमन जो कि सबसे ज्यादा स्केरी और फ्राइटन और जिसमें सबसे ज्यादा खुदावंद के लोगों की परसिक्यूशन हुई, वो रोमन किंगडम थी। तो ये पांचवी किंगडम थी जबकि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई और खुदावंद यीशु मसीह पैदा होने के बाद, इससे पहले कि शैतान उसको डिवावर करता, खुदावंद ने उसको तख्त पे उठा लिया। अब आप इसको ये भी देख सकते हैं कि उसी दौरान खुदावंद ने किसको भेजा कि बच्चे को डिवावर करे, किंग द हेरोड द ग्रेट, जो कि शैतान का पैरोकार था, जो रोमन का किंग था, वो उसने यीशु मसीह को मतलब डिवावर करने की कोशिश की ताकि सेवियर को, जैसे आप देख सकते हैं कि उसने कैसे ऑर्डर किया कि उसने छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया। उससे पहले ये सेकंड टाइम बच्चों, इस्राएल के बच्चों को मरवाया गया था। तो खुदावन ने उस ड्रैगन को इतना स्केयर किया कि उसने छोटे छोटे बच्चों को मरवा दिया, लेकिन खुदावन यीशु मसीह को किस तरह मतलब के सेव करके वहां से निकाल के इजिप्ट में भेज दिया। तो वहां पे जाके उसने जाके बच्चे को तैयार किया, और वो मतलब अपने खुदावन के मंसूबे को, सावशन के मंसूबे को पूरा करके, तो वो जो मतलब खुदावन की मतलब जो साल्वेशन का प्लान था, वो जो औरत थी जिसने बच्चे को जन्म दिया जो कि मेल था। अब आप देख सकते हैं कि ये सारी टाइम जो थे उस वक्त ये था कि मैं ये कहूंगी कि 5 जो खुदावंद यीशु मसीह के दरमियान में अब जो 7 किंगडम है शैतान की वो होनी थी। तो 5वीं में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश होती है, सेवियर की पैदाइश होती है। इस्राएल जो नेशन ऑफ इस्राएल जिस सेवियर को पैदा करने के साथ प्रेग्नेंट थी, वो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको उसी किंगडम के दौरान पूरा किया। तो उसमें यह है कि वो कह रहा है कि 5 जो थी वो गुजर चुकी थी, जो कि मिस्र, बाबल, फारस, यूनान की बादशाहतें थी। इस वक्त सिर्फ रोमा की बादशाहत मौजूद थी जो तमाम दुनिया पर सल्तनत करती थी। तो अब पूरी दुनिया में रोमन का मतलब चार्ज था। रोमन जो कि सारी पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में थी और अपने तरीके से पूरी दुनिया को चलाना चाहती थी। अब आप उसमें से देख सकते हैं कि फिर वो आगे कहता है कि उसने वो किस तरह वो जो उसके सर वो कह रहा है कि फारस, योमा, और उसके बाद उसने कहा कि यूहन्ना ने कहा कि अभी 5 तो हो चुकी है, 2 कौन सी हैं? तो खुदावन ने कहा कि ये 2 किंगडम जो है, खुदावन ने इसको दिखाया कि 2 किंगडम जो अभी होना बाकी हैं, शैतान की 2 किंगडम। तो आप देख सकते हैं कि मतलब शैतान की जो किंगडम, जो 5वीं किंगडम, उसको ब्रेक होने में किस तरह लगा कि जैसे ही खुदावन यीशु मसीह मतलब आसमान पर उठाया गया तो उसके रसूलों ने मतलब उसकी मनादी शुरू की। तो उसके बाद 5वीं किंगडम, 6ठी किंगडम जो थी वो शुरू होने को थी। वो किंगडम वो थी कि मतलब रोमन ने ही ब्लास्फेमी करके, तो रोमन ने ही मतलब किस तरह उस किंगडम को शुरू किया। आपके सामने ये सब आप पढ़ सकते हैं कि आपको हिस्ट्री का सारा पता है कि उसके बाद वो कहता है कि now we talk about 2 more kingdom that was about to be revealed after Jesus' resurrection. The Roma accepted the Lord Jesus Christ and declared the Christianity religion of the Romans, including their pagans, mean, adultery or barbaric. अब वो जो खुदावन की कलीसिया है, जबकि खुदावन ने उस कलीसिया को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया है, तो उस औरत को अब वो किस तरह उसने औरत को बचाना है। और बच्चा तो ऑलरेडी खुदावन के हेवन पे चला गया है, जो सेवियर है वो ऑलरेडी खुदावन की तख्त पर मौजूद है। तो अब जो खुदावन का काम जो साल्वेशन का था वो उधर हो गया। अब औरत को अपनी बादशाही को कायम करने के लिए खुदावन ने औरत को कहाँ पे लेकर गया और कहाँ पे उसको रखा और कहाँ पे उसको परवान चढ़ाया। आप
ہم پڑھیں گے ریولیشن اس میں سے پڑھیں گے دوبارہ. She gave a birth a son, a male child, and he will rule all the nations, and an iron scepter. Scepter, उसको scepter की निशानी है, वो scepter king के पास होता है. तो जहां कहीं भी scepter का हो वहां पे ये देखना कि वहां पे ये कोई kingdom की बात कर रहा है, किसी king की बात कर रहा है. And her child was snatched up to the God and to his throne. The woman fled into the wilderness to a place prepared for her by gods, where she might be taken care of the 1260 days. 1260 days. अब उस औरत को 1260 days खुदावन ने उसकी टेक केयर करनी है. खुदावन ने अपनी कलीसिया की 1200 before he bring his kingdom, 1260 days he has to take care of this woman, take care of his कलीसिया, take care of his church. तो वो कह रहा है कि अब आप देख सकते हैं कि आगे जो के वो कहता है कि जो उसने देखा कि she gave birth to the son, and then war was broken in heaven. Okay, तो उसमें ये बताता है कि वो जो आगे जो जाके वो फिर जब रोमन ने मतलब इसको चर्च को कबूल कर लिया, क्रिश्चियनिटी को, फिर रोमन ने अपने अंदर एक रजीम शुरू की जिसका मतलब है पैक्स रोमाना, जिसका मतलब है कि पीस विद इन अ रोमन. अब रोमन जो कि जाबर हुकूमत है, जो कि मतलब लोगों को, कलीसिया को, लोग खुदा के लोगों को मारती है, परसिक्यूट करती है. अब वो मतलब शैतान से मतलब वो किस तरह शैतान से इंसान बनने की कोशिश कर रही है. ये भी उनका एक तरीका था कि पूरी दुनिया पे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने चर्च को एक्सेप्ट कर लिया, क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया. अब देख सकते हैं कि अब उसके सर पे 10 हॉर्न है. तो ये जो रोमा पैक्स रोमाना शुरू हुआ, उसमें उन्होंने ये शुरू किया कि जो रजीम शुरू की थी, उसने रोमन ने पता है क्या किया कि उन्होंने पूरी दुनिया में, एशिया माइनर में गॉस्पेल को फैलाने के लिए, ये खुदावंद की बादशाही को फैलाने के लिए अपना कंट्रोल रखते हुए, फिर भी अपना कंट्रोल रखते हुए रोमन ने, अब रोमन जो थी वो उसकी जो जाबर किंगडम थी वो ब्रेक हुई, और ब्रेक होके वो किस तरह क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुई, और आगे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को किस तरह मतलब फैलाने की कोशिश की कि वो किस तरह मतलब अपना पूरा होल्ड रखते हुए पूरी दुनिया में इसको मतलब किस तरह फैलाए. लेकिन ये खुदावंद का प्लान था कि रोमन जब गिरी थी, तो आप देख सकते हैं कि भी उसमें मतलब पेप्सी रजीम शुरू होगी, जो कि पोप की रजीम शुरू हो गई, जो कि पोप आजम की रजीम उन्होंने इस तरह शुरू की कि जो पीटर के एक्सेसर्स थे, जो पीटर की काउंसिल्स, पीटर की चर्च के लोग थे, जो बड़े बड़े उसकी डेथ के बाद थे, जो उसके बिशप थे, उन्होंने मतलब किसी तरह से रोमन को गिराने में वो कामयाब हो गए, और किसी तरह उन्होंने मतलब होल्ड रोमन में होल ले लिया क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने के लिए. और फिर वहां पे उसने मतलब वो जो बिशप था, जो उसके मतलब चर्च का बिशप था, पीटर के सक्सेसर का, उसको उन्होंने पोप का दर्जा दे दिया. अब पोप को जो था कि उसने मतलब पूरे रोम पे कंट्रोल कर लिया, और अब उसने कंट्रोल करके आगे जो 10 हॉर्न्स है वो अंडर पोप के चलने थे. तो वो जो कह रहा है कि जो उसके सर पे जो के देख रहा है कि एक जख्म लगा हुआ है, और वो जख्म फिर एकदम जल्दी से भर गया. वो जख्म क्या है कि वो जो सींग पे जख्म लगा है, वो कह रहा है कि भाई वो जख्म जो 10 सींगों में से एक सींग पे एक जख्म लगा, अगर बात का ख्याल है कि मुताबिक वो हैवान बुतप्रस्त रोमा, जो बुतप्रस्त रोमन थी, वो मतलब वो भी एक किस्म का हैवान था जिसमें चर्च ने बुतप्रस्ती और क्रिश्चियनिटी को एक ही करके तो पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की. ये 6 किंगडम थी जो कि शैतान की थी. ये शैतान की जो ब्लास्फेमी जो मकरूहात की माँ है, ये उसने ये काम करके तो खुदावन के लोगों को सताया भी, और खुदावन के लोगों को मारता भी रहा, ताकि कंट्रोल जो है वो पूरी दुनिया का अपने अंडर रखे. ये शैतान का एक मंसूबा था. तो जो जख्म था, वो कह रहा है कि वो जो कैसर अगस्तीन है, वो मतलब उसने जख्म पाया. उसने जख्म ये पाया कि उसने मतलब कैसर अगस्तीन ने इस क्रिश्चियनिटी को मतलब प्रमोट करने के लिए
जुमा ले लिया, वो खुद क्रिश्चियन हो गया, उसने रोमन का रिलीजन क्रिश्चियनिटी कर दिया। तो अब वो मतलब खुदावंद में आ रहा था कि इससे पहले कि वो आता, उसके ऊपर एक और जाबर किंग ने या जाबर उसके जनरल ने हमला कर दिया, और उसने दोबारा वो बुत परस्ती को हटाने की कोशिश कर रहा था कैसर अगस्तीन, लेकिन कैसर जुलियन ने आके उसको दोबारा प्रमोट कर दिया, क्योंकि उसने उसकी रिजीम को खत्म कर दिया। फिर आगे वो कहता है कि वो जो उसके सर पे जो हम बात करेंगे कि जो 10 हॉर्न्स है, वो क्या है, जो 10 हॉर्न्स रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पोप आजम के अंडर चलने थे, जो कि मतलब, लेकिन वो 10 किंगडम भी बारबेरिक थी, बहुत जाबर थी, वो खुदावन के फिर भी वो मतलब सफेद लबादा पहन के, तो वो अंदर से शैतान का काम कर रही थी। ये 10 किंगडम्स जो 10 हॉर्न्स है, वो जो 10 हॉर्न्स जो 10 सींग्स है, वो छोटी 10 किंगडम्स को जो कि डिवाइड होगी, यूरोप की किंगडम्स है, वो उनमें डिवाइड होके उन्होंने किस तरह खुदावंद के लोगों को सताया, ताकि खुदा शैतान का ये मंसूबा था कि उसने सफेद लबादा पहन के, तो वो खुदावंद के जो ट्रू लोग थे, जो सेंट थे, उनको मारते थे किस तरह। तो वो 10 बारबेरिक किंगडम्स जो पेपसी के अंदर चलनी थी, वो जो किंगडम्स हैं, जो गवर्नमेंट हैं, वो आप यूरोप में देख सकते हैं। तो वो जो 10 हॉर्न्स, जो 10 नेशन, जो 10 किंगडम जो कि पेपसीज के अंदर चलनी थी, वो ये थी कि उनमें पहली, पता नहीं ये पहली है ये दूसरी है, वो आप देख सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं कि वो जो यूरोप की 10 किंगडम्स थी, उनके मैं नाम ले देती हूँ। वो ये है कि वो बेल्जियम्स है, फ्रांस है, जर्मनी है, ग्रीस है, इटली है, लक्समबर्ग है, नीदरलैंड है, पुर्तगाल है, स्पेन है, यूनाइटेड किंगडम है। These are the 10 horns that we see on the dragon head, which was supposed to be run under the papacy to devour the children of God, to devour, you know, the बच्चों को devour करना, जो खुदा के बच्चे हैं, जो उसके saint हैं, उनको उन्होंने किस तरह devour किया, ताकि खुदावंद की बादशाही का मंसूबा पूरा ना हो सके। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो यूनाइटेड किंगडम है वो भी ब्रेक होगी। फिर खुदावन ने मतलब आप देख सकते हैं कि खुदावन ने एक और किंगडम जो थी मतलब करनी की जो कि मतलब अब इस किंगडम को किस तरह रहना है कि वो औरत जो उसने 1260 डेज तक उसने वहां पे रह के, तो खुदावन ने उसने मतलब अपनी कलीसिया की टेक केयर करनी है। वो 1200 जो 60 डेज है, वो 12,060 ईयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये जो आखिरी किंगडम थी जिसमें हम हैं, वो 1200 which is 1260 ईयर्स है, जो कि उस किंगडम में हमने रहना था। लेकिन अब उसमें से देखते हैं कि उसके अंदर से वो कहता है कि एक लिटिल हॉर्न्स जो निकला, शैतान के सिर में से एक लिटिल हॉर्न निकला। अब ये देख सकते हैं कि लिटिल हॉर्न जो है वो स्पिरिट ऑफ द एंटाक्राइस्ट है, जो कि मतलब खुदावंद के लोगों को परसिक्यूट कर रही है। अब आप देख सकते हैं कि जो मतलब खुदावंद यीशु मसीह को मतलब ये नहीं मानती कि वो खुदावंद की तरफ से है, ये नहीं मानती कि वो खुदावंद है। वो जो एंटाक्राइस्ट स्पिरिट है, वो ये नहीं मानती कि वो सेवियर है। एंटाक्राइस्ट स्पिरिट वो है जो उसको मानते हैं और वो उनको कत्ल करते हैं, वो उनको परसिक्यूट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि आज का जो टाइम जा रहा है, हम 10 हॉर्न्स के टाइम में जा रहे हैं, जिसमें कलीसिया को कितना परसिक्यूट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ये जो स्पिरिट ऑफ द एंटाक्राइस्ट है, वो जो लिटिल हॉर्न है, जो छोटा सींग है, वो उसको रिप्रेजेंट करती है। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट सैटरडे, द चाइल्ड विद द आयरन रॉड। तो जो बच्चा जो आयरन रॉड है, हम उस पे आगे नहीं, हम अभी खत्म कर देते हैं कि वो जो उसने देखा कि वो बच्चा जो वो सेप्टर के साथ पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा। अब आप देख सकते हैं कि अगला टाइम जो आने वाला है, बहुत जल्द ये टाइम आने वाला है, जिसमें वो बच्चा जो है, जो कि खुदावंद के तख्त पर मौजूद है, उसने एक नेशन को जन्म दिया है। अब वो उस नेशन में से होके उसने पूरी दुनिया में कैसे हुकूमत करनी है, क्योंकि वो आयरन रॉड जो है वो उसकी अथॉरिटी को बयान करता है। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कह दिया कि दुनिया का सारा इख्तियार मुझे दिया गया है,
زمین و آسمان کا اختیار میرے پاس ہے. تو وہ جو مطلب بچہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے جس کے پاس اتھارٹی ہے. آئرن راڈ اتھارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ وہ آئرن راڈ کے ساتھ پوری دنیا میں پورے لوگوں پر حکومت کرے گا, جو کہ گریس کے ساتھ اور آئرن راڈ کے ساتھ وہ رولنگ کرے گا, جو کہ خداوند کی بادشاہی کو بیان کرتا ہے. تو یہ فیوچر ٹائم ہے جو بہت جلد ہونے والا ہے. تو اس کے لیے ہم سب کو تیاری میں رہنا ہے اور ہمیں سرگرم رہنا ہے, اور سرگرم رہ کے ہمیں خداوند کا منصوبہ پورا کرنا ہے. کیونکہ اب وہ جو پریگننٹ عورت نہیں رہی, اب وہ عورت جو ہے وہ ولڈرنس میں, ابھی ولڈرنس میں سے ہو کے جا رہی ہے. جس طرح کے یہ پرسیکیوشن کے انڈر ہے وہ ولڈرنس میں جا رہی ہے, تو ولڈرنس سے ہو کے اس نے خداوند کی بادشاہی میں شامل ہونا ہے, جس کو ہم کرسچینٹی کہتے ہیں, جس کو ہم چرچ کہتے ہیں. چرچ خداوند کی دلہن ہے جو کہ ہم سب ہیں. تو آئیے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. Thank you, Heavenly Father, for this wonderful revelation that you given it to me, Lord, that I was able to speak, Lord. Father, let this the revelations be understandable to other peoples too, so they can mark these things into their hearts, Lord, so they can carry the burden for your kingdoms, Lord, and so they can be always ready, Father. And Father, that you continue to keep us ready and continue to keep your spirit with us, Lord, so we can walk in the spirit and we can be ready when you come. And we can welcome you in the cloud, O Lord Jesus Christ. We know that you are coming. We know that you are coming. And Father, we're asking that you have opened the portal of your grace and opened the portal of your spirit upon to the people, Lord. And now we are asking that you pour your spirit, pour your golden nugget spirits onto all the peoples, onto the earth, so they be able to see, Lord, who they are, and they can be ready when you come. And Father, I plead that you continue to give us more revelations, Lord, so we'll be able to understand and we can apply in our life, Lord. Father, I'm asking that you going to bring a great revival. You know, the crop is ready. तूने कहा फसल तो बहुत है, harvester कम है. खुदावन हम चाहते हैं कि तू रूहों को तैयार कराए खुदावन, ताकि वो जो तेरी खेती में काम करे और तेरी फसल को काटने में आए खुदावन लग जाए. खुदावन तू जानता है कि दुनिया का ग्रेटेस्ट, हम जानते हैं कि टाइम क्या है, हम जानते हैं कि वो जो छोटा सींग है वो पूरी दुनिया में अभी कैसे काम कर रहा है. खुदावन हम जानते हैं खुदावन कि टाइम बहुत करीब है. हम जानते हैं खुदावन, और हम ये भी जानते हैं खुदावन कि तू हर चीज को थोड़ी देर के लिए रखता है. तेरा गुस्सा थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन तेरी जो ग्रेस है वो बहुत ही ज्यादा है. खुदावन तू कहर करने में बहुत धीमा है, शफकत में बड़ा गनी है. हम जानते हैं कि तेरी शफकत अब जो कि बहुत जल्द तेरे लोगों पर पोर डाउन हो चुकी है यीशु के वसीला से. आए खुदावन हम जानते हैं कि तूने अपना आसमान से पोर्टल खोला है, अपनी ग्लोरी की रूह जो है तू अपने लोगों पर डाल दे, ताकि वो तैयार रहे और ताकि वो आजमाइश में न पड़े, ताकि तेरी वो 5 दुल्हने जो वाइज दुल्हने हैं खुदावंद, अक्लमंद दुल्हनों की तरह हम तैयार रहें. हमें अपने ऑयल से भर दे, हमें अपने रूह से भर दे, हमें वो नगट्स दे दे, वो रूह का नगट्स, गोल्डन नगट्स जो तू ऊपर से बारिश की सूरत में बरसा रहा है. खुदाम तू और बरसा, तू पूरी दुनिया में बरसा और पूरी दुनिया के लोगों की आंखें खोल दे. उन सब पे तू अपना रूह ढेल दे, ताकि वो है खुदाम तेरे आने की तैयारी में लग जाए. हम जो कुछ हमने मांगा है खुदाम हमने पा लिया तेरे यीशु, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन. खुदावंद आप सबको बरकत दे. आमीन आमीन. खुदावंद आप सबको बरकत दे. खुदावंद सिस्टर आपको भी बरकत दे. बेशक खुदावंद का कलाम हमें सब कुछ बताता है और खुदावंद का कलाम हम पर वाज़े करता है कि किस तरह से जो है अब्लीस जो है वो काम करता है और किस तरह से उसने खुदा के कलाम में मिलावट की है, किस तरह से उसने खुदा के जो पाक जो उसकी हजूरी को उसने उसमें मिलावट करके किस तरह से उसने लोगों को गुमराह किया हुआ है और किस तरह से वो अपना काम कर रहा है. लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा जिंदा खुदावंद जो लोहे के असर से बहुत जल्द आने वाला है और वो हुकूमत करेगा, वो सारी दुनिया पर अपनी हुकूमत को कायम करने को है. और हम उस वक्त में से गुजर रहे हैं जो आखिरी वक्त चल रहा है और उस 7वीं बादशाहत को कायम होने में अब थोड़ा सा वक्त बाकी है.
6 تو پوری ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور اب آخری ٹائم ہے. اب جو ہے وہ مخالف مسیح کا ٹائم ہے جس میں اس نے اپنا کام کرنا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ پرسیکیوشن اور زیادہ ہوتی جائے گی تمام مسیحیوں کے لیے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، چاہے وہ کہیں بھی رہ رہے ہیں، سب پر پرسیکیوشنز. اور جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، روز ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خداوند کے لوگوں کو ستایا جاتا ہے. تو ہمیں اور زیادہ ایمان میں مضبوط ہونا ہے، اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں آخری وقت میں رکھا ہے. تو ہمیں جو ہے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے، ہمیں روحانی طور پر جو ہے آج جاگنا ہے تاکہ ہم دنیا پر نظر رکھ سکیں، دنیا میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس پر ہم نظر رکھ سکیں، بادشاہتیں جو تبدیل ہو رہی ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ قوت پاتا جا رہا ہے، وہ اختیار اس کے پاس زیادہ سے زیادہ اختیار اس کے پاس آتا جا رہا ہے، تاکہ وہ دنیا کے قوموں کو، دنیا کے لوگوں کو خدا کی قوم کے خلاف جو ہے وہ تیار کر سکے اس جنگ کے لیے جو بہت جلد جنگ ہونے والی ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا یسوع مسیح جو لوہے کے اثر سے حکومت کرے گا وہ بہت جلد آنے والا ہے، اور بہت جلد آ کر ان تمام قوموں کو تہس نہس کرے گا جو اس کے ممسوح کے خلاف اور جو اس کے لوگوں کے خلاف جو اکٹھی ہو رہی ہیں اور جو اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو بڑھا رہی ہیں تاکہ خدا کی قوم کے ساتھ اور خدا کے لوگوں کے جو ہے ان کو اذیتیں دے سکیں، ان کو تکلیفیں دے سکیں. تو خداوند ہمیں جو ہے جاگتا رکھے. جاگنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم دنیا کے حالات پر بھی نظر رکھیں اور اس کے لیے ہم دعا میں ٹھہرے رہیں. خداوند ہم سب کو برکت دے. اور میں اگر کوئی آپ کی پریئر ریکویسٹ ہے تو پلیز جو ہے ہمیں بتائیں تاکہ پھر ہم دعا کریں گے. تو پھر ہمارے ساتھ جو ہے بھائی عرفان ہیں اور وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں گے. ہمارے ساتھ بھائی عرفان ہیں آپ؟ جی سسٹر جی، میں آپ کے ساتھ ہوں. جی اگر کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو وہ بتائیں تاکہ پھر بھائی عرفان دعا کریں گے. جی سسٹر جی، دعا کریں. جی آپ دعا کریں. مائی فریال کی فیملی کے لیے دعا کیجیے. خدا ان کو اس پروسیس میں سے گزر جانے کا فضل بخشے، ان کو تسلی، اطمینان اور تشفی دے تاکہ وہ خاندان خدا کے ساتھ جڑا رہے اور ہمیشہ برکت کو رسیو کرے. آمین. جی آمین. بالکل. جی سٹارٹ کریں سسٹر جی پریئر. جی آپ سٹارٹ کریں. آسمانی باپ یسوع مسیح میں ہم تیرے پاس آتے تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند تو نے ہمیں خوبصورت موقع فراہم کیا تاکہ خداوند ہم تیرے سندر چرنوں میں بیٹھ کر خداوند تیری ستائش کر سکیں، تیرے کلام کا خداوند بیان کو سن سکیں. باپ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنا کلام نازل فرما کر شفا کو جاری کرتا ہے. جتنی زندگیاں خداوند اس کلام کی شنوا ہوئی، ان کی زندگیوں میں خداوند اس کلام کے وسیلہ سے جسمانی اور روحانی شفا خداوند جاری ہو چکی. اور بالخصوص خداوند ہولی سینچری منسٹری کے لیے اس وقت دعا گو ہوں. تمام رجسٹریشن کے پروسیس کو ہم باپ تیرے سپورٹ کرتے ہیں اور سارے پروسیس پر خداوند تیرا قوی ہاتھ چاہتے ہیں. اور ایک قسم کی ہرڈلز، رکاوٹیں یسوع کے نام سے جاتی رہیں. اور خداوند میں اپنی بہنوں کے لیے، سسٹر نصرت کے لیے، سسٹر نسرین کے لیے، ان کے گھرانوں، ان کے کنبوں کے لیے خداوند تیری کثرت کی برکت کو مانگتا. اپنی بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو خداوند اور ذرا اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرنا. میں التجا کرتا ہوں اے باپ، میٹنگ میں اگر کوئی ہمارے ساتھ جڑا ہے اور کسی قسم کی جسمانی بیماری میں ہے، یسوع کے نام سے اس کی بیماری جاتی رہے. اے باپ تیرے بیٹے کے ان الفاظ کو میں یاد کرتا ہوں جس طرح یسوع مسیح نے کہا کہ تم ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو. میں پریال بھائی کے سارے کنبا کو، گھرانہ کو، خاندان کو جو اس وقت شدید دکھ، رنج، آہنالہ کی کیفیت میں ہے، میں ان کے گھرانہ کے لیے،
तुझसे तसल्ली और तशफ़ी को मांगता हूँ। ऐ बाप, जब तक तू हमें तसल्ली ना दे हम तसल्ली नहीं पाते। मैं उनके तमाम अजीजों के लिए जो इस वक्त रोते हैं, जो इस वक्त दुख और रंज की घड़ी में है, उनकी जिंदगियों के लिए, उनके बच्चों, बड़ों, बुजुर्गों, एक एक जान के लिए खुदावंद तुझसे तसल्ली और इत्मीनान को मांगता हूँ, ताकि खुदावंद वो इस दुख, इस तसल्ली की घड़ी में खुदावंद वो तेरे नाम को मुबारक कहें। और खुदावंद उन्हें अपने बंदा अयूब साबरी जैसा ईमान देना, ताकि वो इस बात के लिए भी खुदावंद तेरे नाम को मुबारक कहें कि तूने दिया, तूने लिया, तेरा ही नाम मुबारक है। ऐ बाप, मैं तेरे हजूर एक एक तेरे खादम को जो इस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, पास्टर फयाज अंजन साहब को, इनके घराना को, इनके कुंबा को ऐ बाप तेरे हजूर लाता हूँ। इनके घराना पर खुदावंद तेरी खास बरकत को मांगता हूँ, इनकी बीवी पर, इनके बच्चों पर ऐ बाप मैं तेरे आसमान को खुला मांगा चाहता हूँ। अपने बंदा को और ज्यादा अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर। इसी तरह मैं अपने भाई खुदा के खादम भाई रवि को भी खुदावन तेरे हजूर लाता हूँ। उसके भी सारे माली हालात को ऐ बाप तू खुदावंद और संभाल, और खुदावंद उसके माली हालात को खुदावंद तू ब्लेस कर, और उसकी ब्लेसिंग्स को खुदावंद मल्टीप्लाई कर। उसके सारे और सर्कमस्टांसेस, उन हालात को खुदावंद जो खुदावंद उसकी खिदमत में रुकावटें हायल कर रहे हैं, मैं यीशु के नाम से उसके कुंभा पर खुशहाली को, यीशु के नाम से उसके कुंभा पर खुदावंद तेरी बरकत को मांगता हूँ। अपनी ब्लेसिंग्स को खुदावंद इस पर मल्टीप्लाई करना, अपने आसमानी खजाने को खुदावंद भाई रवि के लिए खोल देना। इसी तरह मैं अबाप तेरे बंदा पास्टर रशीद जॉन साहब के लिए, उनकी खिदमत के लिए, उनके कुंभा के लिए खुदावंद एक एक जान के लिए खुदावंद तेरी कसरत की बरकत को मांगता। अपने बंदा की हदूद को यबीस की हदूद की तरह और ज्यादा बढ़ाइएगा, ताकि खुदावंद और ज्यादा खुदावंद वो तेरे कलाम को लेकर जाए, और खुदावंद तेरे कलाम के प्रचार के वसीला से बथेरों को खुदावंद तेरे करीब लाने का बायस बन सके। अपने बंदा को खुदावंद तो और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। इसी तरह अपने बुजुर्ग खादम पास्टर सदीक साहब के लिए, उनके कुंबा के लिए, इनके घराना के लिए भी ऐ बाप तेरी बरकत को मांगता हूँ। ऐ बाप तो अपने बंदा को उम्र की दराजी दे। अगर उनके बदन में कोई किसी किस्म का चेस्ट इन्फेक्शन, बुखार या जोड़ों का दर्द है, तो यीशु के नाम से जाता रहे। बर्रे का लहू उस बदन में मांगता, ताकि बर्रे का लहू उस बदन में इस तौर से काम करे कि वो लब खुदावंद तेरी गवाही के लिए खोल जाए। अपने बंदा को, उनकी खिदमत को खुदावंद और ज्यादा वसी करना। इसी तरह खुदावंद भाई प्रोबल के लिए, अपनी बहन मारिया के लिए भी खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद तूने उनको भी खुदावंद अपने जलाल के लिए चुना है। उनको भी खुदावंद और ज्यादा खुदावंद बरकत पर बरकत देना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, और खुदावंद उनके होंठों का, उनके लबों का जिम्मा लेना। जब खुदावंद तेरा बेटा और बेटी तेरी प्रस्तिश, तेरी बंदगी करते हैं, तो खुदावंद उस प्रस्तिश और बंदगी के वसीला से खुदावंद उनके घराने पर अपनी बरकत को नाजिल करना। और खुदावंद जितने बहन भाई खुदावंद हमारे साथ इस मीटिंग में शामिल थे, हैं या होते रहते थे, खुदावंद उनकी जिंदगियों के लिए, उनके कुंबा के लिए भी खुदावंद तेरी कसरत की बरकत मांगता हूँ। और आने वाले दिनों में खासकर खुदावंद और इस सेंचुरी मिनिस्ट्री पर खुदावंद तेरे कवि हाथ को मांगता हूँ। ऐ बाप तो अपना कभी हाथ बढ़ाकर खुदावंद सारे मिनिस्ट्री के प्रोसेस को संभाल, और खुदावंद हम होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से खुदावंद बेशुमार लोगों तक खुदावंद तेरे कलाम को फैलाने वाले बन सके। और खुदावंद इस कलाम के वसीला से खुदावंद बथेरों को खुदावंद तेरी बादशाहत के लिए तैयार कर सके। ऐ बाप वो वक्त नजदीक है खुदावंद कि जब तेरा बेटा यीशु मसीह बातों पर आएगा, और खुदावंद तेरी होली सेंट्स खुदावंद जुमकर उसका इस्तकबाल करेंगे। ऐ बाप तो हमें ये शर्फ बख्श कि तेरी बादशाहत के लिए खुदावंद ज्यादा से ज्यादा लोगों को खुदावंद तैयार कर सके, और खुदावंद तुझे अच्छे चुपान के करीब लाने का सबब बन सके। हम सब की ओ खुदावंद तू इसी तरह से आता और रहनुमाई कीजिएगा। इसी तरह खुदावंद अपने लिए, अपने कुंबा के लिए, घराना के लिए, और बिलखसूस खुदावंद अपनी खिदमत के लिए ऐ बाप तुझसे बरकत को मांगता, ऐ बाप तुझसे और ज्यादा गहरे को मांगता। मुझे खुदावंद और ज्यादा गहरे में ले जा, और खुदावंद बिलखसूस खुदावंद जब मैं
उकाड़ा शहर में खुदावंद तेरे कलाम की खिदमत करने को हूँ, तो खुदावंद अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल करना। ओ खुदावंद अब मैं घटता चला जाऊं और तू मुझ में बढ़ता चला जाए, तेरा जलाल खुदावंद मेरी जिंदगी से जाहिर होता चला जाए। और खुदावंद अब मैं निखंबा, मैं ओ खुदावंद जो अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ, मैं खुदावंद तेरे करीब बेशुमार भटकी हुई भेड़ों को लाने का सबब बन सकूं। तो खुदावंद अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल करना। और खुदावंद अपने उस असीम मददगार को, खुदा पाक रूह को मैं अपनी जिंदगी में खुदावंद इसी तरह अनॉइंटिंग और मसा को मांगता हूँ। अपने उस असीम मददगार को खुदावंद जो मेरी रहनुमाई ओ खुदावंद मेरी जिंदगी की हर मोड़ पर करता है, और तेरा कलाम हमें बताता है कि वो हमारी शफायत आहें भर भर कर करता है, उसको अपनी जिंदगी में खुदावंद मैं इसी तरह कसरत से मांगता रहूं, और खुदावंद वो मेरी इसी तरह शफायत करता रहे। अब आप जितनी भी अर्जियां तुझसे मांगी, मैं इल्तिजा करता हूं कि अब आप इनको अपने हजूर बखूर की मानिद कबूल करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। अब हम खुदाम की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। हम सब अपने अपने माइक ऑन करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि में बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा से तेरी है। आमीन। आमीन। जी भाई रशीद हमारे साथ हैं, कलाम बरकत अदा करें भाई रशीद। अरे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक तमाम ईमानदारों के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ, शहर यरूशलेम के साथ और होली सेंचुरी मिनिस्ट्री के साथ, और तमाम खादमीन के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब्दुल अबा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस के नाम से आमीन। 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 खुदावंद आप सबको बरकत दे, इसराइल की सलामती हो। आमीन। आमीन। आमीन।